Hello, dear students. My name is Naveen Kumar, and you are watching Science Square classes. So, in this video, we are going to solve question number 4, question number 5, and question number 6 of chapter 9, some applications of trigonometry. And one more thing, if you are new on the channel, subscribe this YouTube channel and press the bell icon to get notification when we upload the classes of remaining chapters. Okay, listen. And if you did all these things, then come on, listen. So first of all, we will read the question number 4, that the angle of elevation of the top of a tower. It means we have a tower and we have to draw an angle of elevation. Okay? So listen, answer. According to question, what we have to draw? We have to draw a tower. Okay. So this is the tower. This is the tower. And after that, it is saying the angle of elevation of the top of a tower. This is the top of the tower and this is the bottom. Yes or no? So it is the top. So the top of a tower from a point on the ground. So we have to take a point on the ground. And as you all know that bottom will stands on the ground. It means ये जो है ये ground है. और इस ground पर आप कहीं पे भी क्या ले लीजिए, point ले लीजिए. Suppose that I take it a point here. This is a point. And after that, the top of a tower from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. इस point से इस top तक एक angle of elevation बनाना है. Angle of elevation means you are viewing the object from down to top. कि आप नीचे से कहाँ देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो. So this is the angle of elevation. और ये ground है, ये भी ground है, तो मैं इन दोनों points को ऐसे join करवा देता हूँ. Okay, listen. Next, which is 30 meter away from the foot of the tower, and this point is 30 meter away from the foot of the tower. ये tower की क्या है? Foot. और इस foot से 30 meter away कौन है? दूर कौन है? This point. This point is 30 meter away from the foot of the tower. Next is 30 degree. देखो अब आपको क्या है कि पूरा नहीं पढ़ना है. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground इज 30 डिग्री. बीच में ये विच से लेकर और यहां तक जो है आप एक बार स्किप कर दीजिए. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री. कि यहां से यहां तक देखने में जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या है? 30 डिग्री. ओके, गॉट इट. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट ऑफ द टावर. वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन. Okay, so we are assuming that the height of the tower is AB and the point C is 30 meter away from the point B. Is there any doubt? नहीं है? पक्का? Okay. So listen. Now I am writing given that. ठीक है? What we have given? We have given BC equals to 30 meter. BC जो है आपने लेट करी है. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट. BC is 30 meter. Next, angle of elevation is 30 degree. And what we have to find out? We have to find out AB. We have to find out AB. या फिर आप बोल सकते हो height of the tower. Height of the tower. Height of the tower. And which is AB. ठीक है? Which is AB. Now, what will be the next step? So I told you guys that whenever we have sides, then we have to consider two sides. First of all, we will discuss that there is a common side or not. So we all know that there is only one triangle, so there is no need to find the common side because we don't have the following side. So it means we take only what we have given and what we have to find out. आपको दो ही साइड लेनी है, जो given है वो और एक जो find out करनी है वो. सर given कौन सी है? देखो ये given है और find out कौन सी है? ये find out है. ठीक है, so सुनना. As we all know, the side in front of right angle is always hypotenuse. The side in front of given angle is always perpendicular and the remaining side will always base. Okay, so what we have given? We have given base and we have to find out perpendicular. है ना, ये given है और ये find out करना है. So base and perpendicular. So what is the relation between base and perpendicular? हाँ, कौन बोल रहा है? पापा बोल. हाँ, फॉर्मूला है. हाँ, फॉर्मूला है. पापा बोल, पापा हंसते हंसते बोल. पापा बोल, पापा हंसते हंसते बोल. ठीक है. सो परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में रिलेशन कौन सा है?
10। अब कोई बोले सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है, कोट ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर सेम आएगा। सो लिसन, सॉल्यूशन। सो इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, okay, we are taking 10. So tan theta equals to perpendicular upon base. This is the perpendicular, है ना, and upon base. This is the base. And as we all know that the angle that we have is 30 degree, so we have to write 10, and on the place of theta we have to write 30 degree equals to perpendicular is AB and the base is 30. Yes or no? So what is the value of tan 30 degree? As we all know, the value of tan 30 degree is 1 by root 3 equals to AB upon 30. Is there any doubt? Now आप इसको इधर ले आइए, अब ये डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 30 बन जा 30. So AB equals to 30 upon root 3. And I told you in all questions that we didn't consider नेगेटिव साइन एंड स्क्वायर रूट इन द डिनोमिनेटर, कि अपन डिनोमिनेटर में ना तो नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हैं ना ही अपन स्क्वायर रूट को कंसीडर करते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर. सो वी विल राइट rationalize the denominator. So what we have to do to rationalize this denominator, as we all know that the number in the square root, we have to multiply this number in numerator and denominator by the same number. So AB equals to, अब आपके पास अगर यहाँ पर 30 upon root 3 है, so denominator में root 3 है, so you have to multiply this number. इसी नंबर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, root 3 into root 3. And as we all know that root 3 multiplied by root 3 we get 3. Okay, 30 into root 3, 30 root 3. So सर मुझे 3 की टेबल आती है, बोलो 3 10 जा 3 1 जा 3, 3 10 जा 30. So what will be the value of AB equals to 10 root 3? And we all know that just we have to apply the unit also. What we have given is meter. So we can say therefore height of the tower is height of the tower is 10 root 3 meter. 10 root 3 meter. And this is the answer that we need. Okay, कोई डाउट है? नहीं है. So come to the question number 5th. Listen, what we have given in the question number 5th. So we have given a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. कि एक kite है, एक पतंग है जो ground से 60 मीटर अब उड़ रही है. हाइट का मीन्स होता है परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है. तो मान लो ये ग्राउंड है, हो गया ये ग्राउंड, और इसी ग्राउंड पर कौन उड़ रही है, काइट. मान लो यहाँ पर एक काइट उड़ रही है. अब इसने बोला है हाइट का मीन्स है ये परपेंडिकुलर है, तो आप इसे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए. ओके, सो दिस इज द हाइट ऑफ द काइट. ये काइट आपके, मैं बना देता हूं. ऐसे कुछ ये आपकी काइट है और इसकी हाइट क्या है. ए काइट इज फ्लाइंग हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. तो यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो है 60 मीटर. इज देयर एनी डाउट? नो. नेक्स्ट, दिस स्ट्रिंग का मीन्स है धागा. तो दिस स्ट्रिंग, अब आपको पता है ऐसे तो उड़ाऊंगा नहीं, ऐसे है ना, ऐसे उड़ाऊंगा तो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे लेके आ जाऊंगा तो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. बहुत रेयर चांस ऐसा होता है कि एकदम मेरे फेस के ऊपर जस्ट हाइट में काइट रखा हुआ हो ना, तो उड़ाने के लिए जैसे अपन को स्ट्रिंग को ऐसे करना पड़ता है या फिर ऊपर लेके आएंगे तब भी ऐसे खड़ा तो यही रहेंगे, उधर से या ऊपर लेके आएंगे इधर ही ऊपर आ जाएंगे. तो सुनना, सो द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. और ये बोल रहा है कि जो धागा पतंग से बंधा हुआ है उसको ग्राउंड पर कहीं टाई कर दिया. मान लो कहीं पर भी ग्राउंड पे, तो मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, और इस पॉइंट से मैंने दैट स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. और यहाँ पर एक पॉइंट था और इस धागे को यहाँ क्या कर दिया, टाई कर दिया, बांध दिया. अब ये धागा इसके साथ था और इसके साथ होने के बाद मैंने यहाँ बांध दिया, तो ये धागा यहाँ से यहाँ, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके, ये स्ट्रिंग इसके साथ कनेक्टेड है और इस पॉइंट पे मैंने इसको टाई कर दिया. नेक्स्ट, द इंक्लिनेशन. इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, हाँ कल भी बताया था, झुका होना. क्या? झुका होना. सो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, कि ये जो धागा है ये झुका हुआ है विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ.
इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ इसका जो झुकाव है वो क्या है, इंक्लिनेशन क्या है, 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको इस स्ट्रिंग की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है, धागे की लेंथ बतानी है, और आपको पता है धागा ये है, तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ। ओके, सो एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्लैक का मतलब होता है गांठ। अगर आप उस धागे में गांठ लगा दोगे तो थोड़ा बहुत धागा वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, और उसकी लेंथ जब आप उस धागे को खोलोगे तो लेंथ और बढ़ जाएगी। तो इसने बोला देयर इज नो स्लैक, कि उस धागे में कोई गांठ नहीं है, तो इसका मतलब लेंथ जो है स्ट्रिंग की जो जितनी है उतनी रहेगी, बढ़ने के चांसेस नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन। सो गिवन दैट what we have given, let assume that the following triangle is AB and this point is C, जहां पर आपने धागे को टाई किया है। So what we have given, AB equals to 60 meter, and what we have to find out, we have to find out the length of the string, means AC. So find out, क्या find out करना है, length of the string, length of this string, and which is AC. We have to find AC. Now, as we all know that I told you that just we have to pick two sides. The first one that we have given, and the second one what we have to find out. So what we have given. So first of all, we all know that the ये राइट एंगल कैसे हुआ पता है ना, क्योंकि हाइट हमेशा जो है वो कैसे परपेंडिकुलर ही मेजरमेंट होती है। अगर इसने हाइट बोला इट मींस कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे। सो द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस। The side in front of given angle is always perpendicular, and the remaining side will be its base. So what we have to pick now? We have to pick what we have given. तो अपने को एक तो ये given है 60 मीटर है, and that we have to find out. ये अपने को find out करना है. So जो given है वो perpendicular है, जो find out करना है वो क्या है, hypotenuse. So there is a relation between perpendicular and hypotenuse. It is क्या, sin. मैं लिख देता हूँ फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा, पापा बोल, पापा हंसते हंसते बोल. So perpendicular upon hypotenuse, there is a relation between sine. So we will write solution, and after that we will consider triangle ABC. So आप बोलोगे in triangle ABC, बोलो क्या बोलोगे, sin theta, and I am writing direct that that theta that we have. What is the angle that we have? It is 60 degree. So sin 60 degree means sin theta, theta की जगह एंगल हो गया, perpendicular upon hypotenuse. What is the perpendicular? AB, and what is the hypotenuse? AC. So tell me one more thing, what is the value of sin 60 degree? बोलो root 3 by 2. So okay, root 3 by 2 equals to AB. What is the value of AB? 60 upon what is the value of AC? That we have to find out. Now do cross multiply. क्या करना है आपको, cross multiply, इसको इससे multiply कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए. So root 3 into AC, root 3 into AC equals to 62 ja 120. Okay, yes or no? Here is root 3 in multiply, so it will be changed into divide. So we will write AC equals to 1 upon 20 root 3. And as we all know that we didn't consider square root in the denominator, so just we have to do rationalize. Okay, so write rationalize the denominator. Rationalize the denominator. So बोलो AC equals to, बोलो 120 upon root 3 into root 3 into upon root 3. Root 3 into root 3 क्या हो जाएगा 3. So we will write AC equals to 120 root 3 upon 3. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40. So क्या आ गया, AC equals to 40 root 3 meter. This is the desired answer that we need. So आपके पास आंसर आ गया 40 root 3 meter, and we already write here that the length of the string is AC. So AC equals to 40 root 3. इसका मीन्स आपके पास जो स्ट्रिंग थी उसकी लेंथ क्या है, 40 root 3 मीटर. कोई डाउट है, नहीं है, पक्का, चले आगे. ओके, so next, in the next question, a 1.5 meter tall boy, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. एक 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है. तो पहले बिल्डिंग बना लेते हैं, जितना बोला उतना ही करते हैं, आप पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ते. व्हाट वी हैव गिवन, सो वी हैव गिवन अ बिल्डिंग.
This is the building and its height is 30 meter because he told us, sorry, the question is saying us that 30-meter tall building. So height of this building is 30 meter. Okay. And a boy standing, a 1.5 meter tall boy is standing some distance from a 30-meter tall building. ये 30 मीटर की tall building होगी. इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है. मान लो वो लड़का यहाँ है. ठीक है. ठीक है. अब ये लड़का है और इसकी हाइट क्या है? 1.5 मीटर. इसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर. नेक्स्ट, द सेम थिंग दैट वी हैव गिवन, we draw. So next, the angle of elevation from his eyes to the top of the building. ये बोल रहा है कि इस लड़के की आईज, तो पहले एक बात बताओ, इस लड़के की आईज से जस्ट स्ट्रेट जाने वाली लाइन को क्या बोलोगे? बोलो बोलो. हाँ सही बोल रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या बोलोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन. सो इस लड़के की आईज से जस्ट स्ट्रेट जाने वाली ये जो लाइन है इसको मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. अब बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. ये बिल्डिंग का बॉटम है, ये बिल्डिंग का टॉप है. तो इस आई से इस टॉप पर एक आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है. एंगल ऑफ एलिवेशन का मींस आप नीचे से कहां देख रहे हो? ऊपर देख रहे हो. पक्का? सो नेक्स्ट, आप यहां से यहां देख रहे हो. एंड व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हिच इज 30 डिग्री. Next, now it is saying that the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. पहले 30 डिग्री था और उसके बाद कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री. हुआ कब वो? As he walks towards the building. जब वो बिल्डिंग की ओर चला तो 30 डिग्री से एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री. ओके. सो अब पहले 30 डिग्री था, अब ये लड़का यहां था, अब ये चलते हुए यहां आ गया. और जब अब इस बार ये जब बिल्डिंग को देख रहा है तब एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री. तो मैं बना देता हूं. एंगल हो गया 60 डिग्री. Is there any doubt? No. And as we all know that the boy and the building is on the ground. So this is the ground. कोई doubt है? Okay, नहीं है. Now as we all know the height of the building which we have given is 30 meter. Okay. So and the boy's height is 1.5 meter. है कि नहीं है? मुझे एक बात बताओ, अभी इसने क्या पूछा आपसे? As he walks towards the building, find the distance as he walks toward the building. कि वो लड़का जो है वो क्या कहाँ गया है? कहाँ गया है वो? यहाँ से यहाँ आ गया. तो वो कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? तो आपको बताना है कि वो कितनी डिस्टेंस चला है. तो आपको पता है वो इतनी डिस्टेंस चला है. चला कि नहीं चला? इतनी डिस्टेंस चला है. एंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस कि ये कितनी है, ये है ना. मीटर में, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है ना, तो मीटर में कितनी होगी ये डिस्टेंस? एक्चुअल में तो हम सॉरी बाय फिगर तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक गया तो ये डिस्टेंस है, लेकिन नंबर्स में ये क्या होगी वो आपको बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस बिल्डिंग. सो ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी. ऐसे कुछ भी दे दो, कोई जरूरी नहीं है रेक्टिफिकेशन नहीं करनी कुछ. लेकिन सर यहां से यहां गया है, ये निकालना है. मैंने बोला हाँ कि यहां से यहां गया है और ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है सर, कर लेंगे. सर यहां से यहां तक 1.5 है, तो क्या सर यहां से यहां तक भी 1.5 होगा क्या? यहां से यहां तक भी क्या होगा? 1.5 होगा कि नहीं होगा? होगा सर. टोटल कितना है यहां से यहां तक? टोटल कितना है? 30 मीटर. लेकिन सर यहां से यहां तक तो 1.5 है ना सर. तो यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से यहां तक कितना होगा? तो मैंने बोला कि अगर आप इस बड़े वाले को और इस छोटे वाली ग्रीन लाइन को जब आप ऐड करोगे तो क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए. तो मैंने बोला कि इस लाइन को और इस लाइन को ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए. आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो अगर आपके पास ये 1.5 है तो 30 में से 1.5 माइनस कर दो, ऊपर वाला आ जाएगा आपके पास. आएगा कि नहीं आएगा? तो बोला सर नो, गिवन व्हाट वी हैव गिवन हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग है टावर, बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? 30 मीटर है. से सो नो. सो आपके पास जो हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है एसी वो कितना है? 30 मीटर है ना. है कि नहीं है? एंड वी ऑल नो दैट डीजी इक्वल्स जो जो डीजी है वो कितना है? 1.5 मीटर.
और ये जो डीजी है वो किसके इक्वल है? डीजी जो है वो बीसी की इक्वल है। बोले सर कैसे कर दिया आपने इसको इसके इक्वल? बिकॉज इफ वी विल फिगर आउट दिस, सॉरी, अगर आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है, ये एक जो शेप आपको दिख रही है, ये एक रेक्टेंगल है। जब आप इसका एनालाइज करोगे तो आपको लगेगा एक रेक्टेंगल, एंड वी ऑल नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ इन ए रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ रेक्टेंगल। तो इसका मतलब ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5। सो वी कैन से दैट ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। एंड व्हाट इज द एसी? देखो अभी आपने बोला एसी 30 है तो मैं यहां लिख रहा हूं एसी इज 30, ठीक है, equals to what is the value of AB? We didn't have the value, and BC is 1.5। तो ये 1.5 का आप इधर ट्रांसपोजिंग करोगे तो किस पे आ जाएगा? माइनस में। सो AB equals to 30 minus 1.5 which is 28.5 मीटर। से सुनो कि सर अगर अब आपको तो सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस चाहिए, तो सर ये नीचे वाला क्या करना? कोई काम है क्या इसका? कोई काम नहीं है। तो बोले सर इसको इरेज कर दें। कर दो। तो आपने बोला सर इसको इरेज कर दो। फिर मैंने बोला ठीक है, अगर इरेज ही करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला इरेज कर दो, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। अब बोला सर अब ए बी 28.5 है तो क्या ये लिख सकते हैं? हाँ ये लिख सकते हैं। तो आप यहां से यहां तक जो ए बी है उसके लिए आप क्या मेंशन करेंगे? अब आप इसके लिए जो है वो मेंशन करेंगे 28.5 मीटर। ए बी, और इस पॉइंट को अब आप क्या बोल दो? पहले वो सी था तो अब आप इसको बोल दो डी, है ना? डी था नहीं, और ये था ई, ये था डी जी ई एफ बी सी, ऐसे ही तो था। तो उसको इरेज कर दिया। बाकी पॉइंट सेम रहेंगे अपने, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट डी ई। सो मैं मेंशन कर रहा हूं, फाइंड आउट क्या करना है आपको? द फाइंड आउट, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट डी ई, है ना? कि आपको डी ई फाइंड आउट करना है। यस और नो? Now, first of all, as we all know that I told you in the last questions, and I am saying that we have to choose two sides. The first one that we have given or common, या तो given हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? common. And next what we have to find out. So देखो यहाँ पर अगर आप ए बी ई ट्राइंगल लोगे तो इसमें ए बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट ए बी डी लोगे तब भी इसमें ए बी आएगा। तो यहाँ पर जो ए बी आ रहा है वो आप उसे चाहो तो कॉमन मान लो, चाहो तो गिवन मान लो, ठीक है? तो एक बार आप क्या निकाल लो? ए बी ई, ठीक है? ए बी ई जब आप कंसीडर करोगे तो आपको पता है गिवन एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंड द रिमेनिंग साइड विल बी इट्स बेस। तो मैं जो है एक बार यहां से क्या ले लूंगा? कंसीडर करूंगा परपेंडिकुलर, और क्या कंसीडर करूंगा? बेस। बोले सर क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस लेके चलूंगा तो मेरे यहां से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये गिवन है तो मान लो ये फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करूंगा तो मेरे पास बेस की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? नेक्स्ट जब मैं लूंगा ए बी डी, तब मैं फिर से परपेंडिकुलर और क्या लूंगा? बेस। तो इस बार मेरे पास पूरे वाला बेस आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। पहले क्या आया था? बीई, और इस बार क्या जाएगा? बी डी। तो फिर मैं क्या है, बड़े वाले में से ये इतना इतना पार्ट जो है ये क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डीई। बोले सर समझ में नहीं आ रहा, करके बता दो। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग इट्स सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABE. First of all, we are taking triangle ABE. And why we are taking this triangle? Why we are choosing this triangle? Because we have perpendicular and what we have to find out its base. अगर base आ जाएगा तो आगे बाद में देखते हैं, पहले इतना देखो. So what is the relation between perpendicular and base? As we all know that perpendicular and base is tan theta. So I am writing direct tan theta. On the place of theta, I am writing 60 degree because in ABE, shorter triangle, there is angle 60 डिग्री. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज द परपेंडिकुलर? क्या है परपेंडिकुलर आपके पास? बोलो. परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या है? बोलो. बेस क्या है? बी. ओके बी. ठीक है. सो टेन 60 डिग्री इज √3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? 28.5 बीई. ठीक है. सो √3 कैन बी रिटर्न √3 अपॉन 1.
अब मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ इंटरचेंज दिस, आप इनको इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मतलब है कि बीई की जगह तो √3 आ जाएगा और √3 की जगह कौन आ जाएगा, बीई। तो इंटरचेंज बोल रहा हूँ इनको ना, इंटरचेंज। सो बीई इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। Yes or no? Without it. And we all know that we didn't consider square root in the denominator. So we will do its we will do rationalize. तो आप इसका डायरेक्ट रेशनलाइज कर रहा हूं मैं ना, पता तो लगी क्या, ये लिख लेना रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो √3 अपॉन √3, ओके। सो √3 into √3 3, so BE equals to 28.5 √3 upon 3। सो देखना 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, 28 में से 27 गया, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और 1 क्या क्या 5, 15। सो 3 5 जा 15, सो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 5। सो बीई इक्वल्स टू 9.5 √3 मीटर। ठीक है, बोला सर ये तो अपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जो अपने को फाइंड आउट करना है वो है, नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना अपने को, नेक्स्ट अपने को जो फाइंड आउट करना है वो है बीडी। सो नाउ दिस टाइम वी विल कंसीडर अ बिगर ट्राइंगल। सो मैं यहां पर एक बार इसको हटा रहा हूं, देखना। ठीक है, अब यहां पर जो ट्राइंगल, एक बार ये देखना कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल, एक बार ए बी डी, यहां पर एंगल कितना है 30 डिग्री। ओके, सो नाउ एज वी ऑल नो द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ओके, द साइड इन फ्रंट ऑफ गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड इट्स बेस। अब मैं जो है यहां से क्या निकालूंगा, बीडी। पहले बड़ा बेस निकाला, अब बड़े वाले बेस में से मैं छोटे वाला बेस माइनस करूंगा तो मेरे पास डीई आ जाएगा। ये पूरा कौन सा बेस है, बड़ा बेस है कि नहीं। तो यहां से आप क्या निकाल रहे हो, बीडी निकाल रहे हो, और पहले आपने क्या निकाला था, बीई। तो अगर आप बीडी में से बीई को माइनस करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डीई की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, डीई की। आएगी कि नहीं आएगी, क्या हुआ, बोर हो रहे हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। बोर हो रहे हो, मैं नहीं हो रहा, मैं भी हो रहा हूं। हाँ चल, तो बीडी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो बीडी फाइंड आउट करना है। सो द सेम थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर इट्स परपेंडिकुलर बिकॉज दिस इज वी हैव गिवन। सो ये आपके पास गिवन है, ये 28.5 गिवन है, और ये आप फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस लेके चलना है, एंड द रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस इज tan theta। सो आई एम राइटिंग डायरेक्ट, लिसन। सो in triangle ABD, in triangle ABD, I am considering a tan theta and the angle is, देखो इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंड दिस वन इज कंप्लीट इट्स बेस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज इट्स परपेंडिकुलर, AB, अपॉन व्हाट इज इट्स बेस, BD। So tell me one more thing. What is the value of tan 30 degree? बोलो 1 by √3. So 1 by √3 equals to, what is the value of its perpendicular? 28.5 upon, what is the value of BD? It's BD. Cross multiply. BD बन जा, BD equals to 28.5 √3 meter. So this is the value of BD, but we have to find out how much distance covered by the boy, कि बच्चे ने कितनी डिस्टेंस कवर की। पहले लड़का यहाँ था, उसकी आईज तो जो थी वो यहाँ थी, और उसके बाद वो यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, मींस आपको डीई निकालना है। सो वी विल राइट दैट डीबी, या फिर अपन लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू, जो बी डी है उसको आप क्या लिखोगे, बीई प्लस बीई प्लस डीई, बीई प्लस डीई, बीई प्लस डीई। अगर आप बीई और डीई दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, बीडी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, पक्का। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी, द वैल्यू ऑफ बीडी इज 28.5 √3, 28.5 √3 इक्वल्स टू
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीई? बोलो बीई की वैल्यू क्या है? सो द वैल्यू ऑफ बीई इज 9.5 रूट 3, 9.5 रूट 3 प्लस डीई। ठीक है, नाउ वी विल गोइंग टू ट्रांसपोजिंग दिस 9.5 रूट 3। अगर ये इधर प्लस का इस तरफ आएगा माइनस का, सो वी कैन से डीई इक्वल्स टू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। बोले सर माइनस कैसे करें? अगर आपको ऐसे माइनस नहीं आता है तो आप यहाँ से रूट 3 जो है वो कॉमन कंसीडर कर लीजिए। सो रूट 3 जो है आपने कॉमन कंसीडर कर लिया, डीई इक्वल्स टू रूट 3 कॉमन कंसीडर किया, यहाँ से क्या बचेगा 28.5 माइनस 9.5, और 28.5 माइनस 9.5 देखो 0.5 से 0.5 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। बाद में क्या बचा, इधर 28 बचा और उधर क्या बचा 9, तो 28 में से 9 जाएगा क्या बचेगा 19। ओके, so we can say that DE equals to 19 root 3 meter. So this is the distance which was covered by the boy. तो यही वो डिस्टेंस है जो इस लड़के ने कवर की। कोई डाउट है? मुझे उम्मीद है कि आपको जो समझाया है वो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो को एक बार दूसरे वे में एक्सप्लेन करने की, मीन्स आपके लिए कुछ भी। ठीक है, थैंक यू और हंसते रहो, पढ़ते रहो और मुझसे, ठीक है, यूट्यूब पर। बाकी टीचर तो पढ़ा ही रहे, है ना। ध्यान रखना अपना, बाय।